Good morning. Welcome to Academic Buddy. This is Ruchi Jain and I wish you all the best for your KVS preparation. Today is my final day and I promised you कि I will come up with good set of questions. हमने मेहनत करके कुछ questions निकाले हैं. आप ध्यान से सुनिए, वीडियो को पॉज करिएगा और ध्यान से इसका प्रैक्टिस मिरर के सामने करिएगा. And do recall and don't forget that your introduction, right from the introduction to closure, it has to be very nice. आपका जो preparation है अच्छा होना चाहिए. तो यहाँ हम start करते हैं. बिल्कुल मैं वैसे ही start करूँगी जैसे मेरा ही interview है, ठीक है? So I begin. May I come in, sir? May I come in, ma'am? Thank you. Good morning, sir. Good morning, ma'am. If it's afternoon, good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Please sit down. उन्होंने कहा बैठ जाइए. Thank you, sir. Thank you, ma'am. My name is Ruchi Jain. I've studied from the so and so school. I've graduated from so and so university. Take a pause. एकदम से बड़बड़ा के हुए मत बोलिएगा. रुचि जैन मैंने क्लियरली बोला. इस तरह से नाम आपका क्लियर उन्हें सुनाई दे. क्वेश्चन नहीं करें क्या? डोंट गेट नर्वस. टेक अ ब्रेथ. थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं. आई स्टडीड फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी एंड I love teaching because it's my passion and I decide to do this service to mankind because it's in a way you empower children. You know, मैंने कहा कि मैं बच्चों को का मनोबल बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये सर्विस चुनी. आप अपने शब्दों में रीजन बताइएगा कि why have you taken this profession? What desires you to come here for this interview? And give an example also. मैं बचपन से अपने भाई बहनों को पढ़ाती थी और मेरा तरीका उनको बहुत अच्छा लगता था. बड़ी सरलता से वो मेरी टीचिंग समझ जाते थे. So I used to enjoy teaching my brother and sister, my siblings, and they were very motivated by my approach. My motivational approach inspired me to become a good and a professional teacher, how to empower children, how to see to it that they meet their goals in future. So I decided to take up teaching. This was your interview question of your introduction. If anything else you want to add your hobby, you can add. Like I like to read and write. I write certain liners also. आप ध्यान रखेंगे जो भी आप हॉबी बोलेंगे क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन वो जरूर करेंगे. अगर आपने सिंगिंग बोला तो हो सकता है दे कैन क्वेश्चन यू, कुछ पंक्तियां गा दें. अगर आपने कुछ शेर शायरी बोली तो पूछ सकते हैं आप बताइए. सो बी ऑनेस्ट. इंट्रोडक्शन शुड बी जेन्युइन एंड ऑनेस्ट. अच्छे से बताइएगा एंड अपने बारे में सेल्फ it should reflect that you like your personality. जब आप अपने आप को पसंद करेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन भी खूबसूरत होगा. Alright, that's the key factor for a good introduction. Now next question, what inspired you to become a teacher? आपने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा तो बता ही दिया कि मुझे ये क्यों पसंद है. इसी को थोड़ा सा आपको डिटेल में वो पूछना चाह रहे हैं क्यों, क्योंकि वो they want to know why KVS, why did you choose. तो उसके लिए आपको बताना है कि मेरी विल पावर थी कि मैं अपने सिर्फ अपने ही फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को पढ़ाना नहीं बट और बच्चों को पढ़ाना. मीनिंग इट्स नॉट माय क्राइटेरिया दैट टीचिंग शुड बी जस्ट इन अ स्मॉल सर्कल. आई वुड लाइक टू क्रिएट अ बिग सर्कल. आई वुड वांट माय स्किल, जो मेरी स्किल है वो सब पे पहुंचे. यू नो, आप बोलेंगे मेरा एक हुनर है, भाई आप में स्किल है तभी तो आप यहाँ पे बैठे हैं बताने के लिए कि आई एम गुड. सो यू हैव टू रिफ्लेक्ट दैट आई हैव in short a good teaching skill. That's why I was self motivated and that inspired me to get into teaching. All right, now why do you want to work at Kendriya Vidyalaya as a teacher? This is an obvious question, that why KVS and no other institute, why not lecturership.
सो आप बताएंगे बिकॉज KVS इज अ प्लेटफॉर्म। हमने देखा कि आपका स्कूल एक अपॉर्चुनिटी देता है, सारे हर तरह के बच्चे, हर लेवल के बच्चे यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, उनको आप अपॉर्चुनिटी देते हैं आगे करियर ग्रोथ के लिए, फॉर करियर ग्रोथ। आपको उनकी उनकी बारे में बताना है। यू हैव टू प्रेज KVS। इन शॉर्ट यू शुड प्रेज KVS in short words that you give an opportunity for career growth. This will help to score you better than why KVS you choose. Alright, so you have to add that why you chose to work for Kendra Vidyalaya. Why KVS? Because KVS आप stress करके बोलेंगे, it gives an opportunity to all the children from all different backgrounds. It has a diverse approach. It has diversity in unity. That means वो सिर्फ क्रीमी लेयर को नहीं चूज करते हैं, अपर क्लास को नहीं लेते हैं, वो सब लेवल के बच्चों को लेते हैं। हर लेवल का बच्चा यहाँ, इट्स एन ओपन, कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। दैट इज अ वेरी गुड अप्रोच। ओके, इन डाइवर्सिटी वी स्टैंड यूनाइटेड। तो ये स्ट्रेस करिएगा। So this is the reason why I chose KVS, because other schools I would not like to name, but they only look for creamy layer for certain category, and KVS does not look for that certain category. All right. So next question would come up: are you willing to work in any city? Now this is a very tricky question, and you have to be honest. वो इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर आपको जैसे कहीं पे भेज दिया, जैसे मणिपुर भेज दिया या कहीं पर भी भेज दिया, तो आर यू विलिंग? सो विथ कॉन्फिडेंटली, सोच समझ के आपको यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि येस आई एम प्रिपेयर्ड एज अ टीचर, आई वॉन्ट टू टीच। टीचिंग इज एनी वेयर, इट डज नॉट बाइंड मी ओनली टू वन प्लेस। आई एम नॉट बाउंडेड। मैं एक जगह आप मुझे बाइंड मत करिए। मैं एक रूरल, एक गांव में भी आप मुझे भेजेंगे, मैं तैयार हूँ, बिकॉज द पर्पस ऑफ टीचिंग इज सर्विस टू मैनकाइंड। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन? ये क्वेश्चन इज वैलिड बिकॉज एंड यू शुड बी ट्रूली आंसरिंग that. जैसे मैंने कहा I like English because I am comfortable in English, so I will say I like English. English is my favorite subject. My USP is my vocabs. I'm highly very good in vocabs. आप कहीं से भी कुछ भी पूछ लीजिए, चाहे वो शेक्सपियरियन इंग्लिश हो, कोई सी भी तरह की लैंग्वेज हो या लिंग्विस्टिक हो, फोनिक्स हो, means give your best. English means everything. Even in grammar, I'm excellent. You have to be very confident. If you say computer, you have to give details of computer. If you say maths, give little details on it. Reflect your details. This shows that आपको knowledge है। ऐसे नहीं बोलेगा मेरा favorite subject English है, तो ये तो बच्चा बोल रहा है। You have to talk maturely that why you like that subject. All right, so give it a very loaded answer. All right, now what are your strengths and what are your weakness? नाउ आप ध्यान रखेंगे, आपने कुछ अपने बारे में जो बोल रहे हैं उसी के रिलेटेड द क्वेश्चन इज कमिंग अप एंड इट इज रिलेटेड टू टीचिंग. फोकस ऑन योर टीचिंग. तो माई स्ट्रेंथ इज, जस्ट रिमेंबर माई स्ट्रेंथ इज माई टीचिंग स्किल. आप उसको फोकस करते हुए आप बताएंगे, क्योंकि उनको दिखना चाहिए आपकी बॉडी लैंग्वेज से दैट आई एम सो मच इनटू टीचिंग, इट इज इन माई ब्लड. This is me. I stand out in the crowd. I am the personality which you're looking for. ये reflect होना चाहिए. This is my strength. It's my teaching which will take this school to a different level because I am unique. I am flexible. अच्छे vocabs. अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो अपना अच्छा phrase डालिएगा. इससे reflect हो कि आपकी strength teaching है. All right. Now weakness. Now next thing is weakness. A weakness is something which you're not asking you to speak negative. Weakness अगर बोला तो ये नहीं कि आप अपनी बुराई करें, उसी में ही आप अपनी क्वालिटी बताएं जो KVS के लिए रिलेटेड हो. वीकनेस में आप कह सकते हैं आई एम गुड इन टीचिंग इन ऑल द सब्जेक्ट्स.
मैं अपने भाई बहनों को पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ, लेकिन जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है, उसमें मैं इतना मगन हो जाता हूँ कि वो पता ही नहीं चलता कि मैं कितना विस्तार में जा रहा हूँ। ये आपने अपने लैंग्वेज में हिंदी में बोल दिया. इन इंग्लिश, इफ दोज आर इंग्लिश मीडियम कैन से my favorite subject is let's say because I am saying it's English, you can say your computer, your maths, if it's whatever EVS है, क्योंकि you're teaching. ध्यान रखिए आपको कौन सा फेवरेट है, उसको कहते हुए आप बोलिए कि मेरा वीकनेस है, मुझे ये ज़्यादा पसंद है, दैट इज़ माई वीकनेस, बट आई एम वर्किंग हार्ड कि आई शुड बी एबल टू डू इक्वल जस्टिस इन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. तो आपने अपनी बात भी बोल दी, वीकनेस, और उनके लिए एक क्वालिटी हो गई कि शी इज एक्सपर्ट इन सो एंड सो सब्जेक्ट. दिस कुड बी अ गुड आंसर एंड इट इज रिलेटेड टू योर टीचिंग. ऑलराइट, नाउ the next question would be, do you read newspaper or what would you like to read? So do keep in mind, आपको मेकअप नहीं करना है, you have to be honest. आप जो रीड करते हैं उसे स्पेसिफाई करिए. Yes, I like, आपने हॉबीज में स्पेसिफाई करा होगा, आई लाइक रीडिंग और आई लाइक वट एवर यू से, उसी को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू योर एंटायर पर्सनैलिटी, रिफ्लेक्टिंग एज अ गुड टीचर. तो येस, आई लाइक टू रीड न्यूज़पेपर्स एंड इन दैट न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं सम एडिटोरियल कॉलम के, सम राइटर्स वो टिप्स देते हैं किस तरह से चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना और बच्चों को हैंडल करना, पेरेंटल काउंसलिंग. डू मेंशन दिस, यू नो, पेपर में बहुत आता है, इट कम्स अप, हाउ टू हैंडल चाइल्ड साइकोलॉजी, बिकॉज यू ऑल आर नॉट साइकोलॉजी स्टूडेंट्स. लेकिन हम पढ़ तो सकते हैं, तो हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि वी हैव नॉलेज, वी नो हाउ टू काउंसिल पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स. So this is a very good point that you read every day about it and you have knowledge on it. All right? So reflect your knowledge there. Next is, what are your responsibilities as a school teacher? Now this question is a valid question again. They are asking you why, you have to quickly answer. इसमें सोचना नहीं है. It's a duty. Responsibility मतलब मेरी duty है, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी. I will give my 100%. So do say very forcefully. इसमें सोचना नहीं होता है, इसमें बस बोलना है कि ये मैं करूँगी. This is my duty. Alright? The next is, last time भी हमने क्लास में समझाया था, how do you maintain discipline? So आप इसी तरह से, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, the discipline comes from where you should be knowing the behavior of the child. Once you pick कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, उस बिहेवियर को हम काउंसलिंग करेंगे, उस बिहेवियर पे हम समझेंगे बच्चे को. Our lesson plan, remember that, do mention lesson plan should be so good, the child should be engaged and the class will definitely go well, and I will maintain discipline. आपने अपना कंक्लूजन में बता दिया कि मेरा लेसन प्लान इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि the child will be engaged and I will be able to maintain. The next question, suppose the approach of your lesson plan does not work. This should be a smart answer. इसमें आप सोच समझ के बोलेंगे, क्योंकि मेन उन्हें वो टीचर चाहिए पूरे क्राउड में जो क्लास को लास्ट मिनट पे भी लाइवली क्लास बना दे. The class should be so lively that if the lesson plan fails, the teacher has maintained the discipline and cheerfulness of the class. Cheerfulness is very important. तो जब फेल हो जाता है क्या करेंगे, तो आपका सिंपल बड़ा मुस्कुराते हुए आप बोलेंगे कि मैम, इफ द चाइल्ड हैज नॉट अंडरस्टूड माई लेसन, तो एक उसकी जो अप्रोच होगी मेरी, आई विल बी ट्राई टू सी टू इट कि वो कॉम्प्रीहेंड करे. कंटिन्यूस CCE, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, जो एवेल्युएशन मेथड होता है, हम बच्चे को उसी तरह से समझेंगे और उसको उसकी काउंसलिंग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे. इंडिविजुअली 1-to-1 इंटरेक्शन होगा. इट विल बी अ ओपन 2-way interaction. It will be child-centered class and a cheerful class, and I will engage in all kinds of activity. I will see to it that the children is participating in my classroom. Participation is must. Cheerfulness is must. Class activity में क्या आता है? Is it just writing? No, it's also a lot of creative work.
आई विल एनकरेज क्रिएटिव वर्क. ऑलराइट, क्रिएटिविटी पे ज़रूर वेटेज डालिएगा, बिकॉज वी आर नॉट हियर टू गिव द रोट लर्निंग मेथड. हम सिर्फ रट्टाफिकेशन के लिए नहीं आए हैं कि बच्चों को बता दिया कि ये चैप्टर है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है और लर्न करो. हम उनको अपने मेथड बताने आए हैं थ्रू कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन. ऑलराइट, so this is a very good question and it will definitely come. So do mention the reasons behind it. CCE का ध्यान रखिएगा. Okay. Now next question is that why do you want to become a government school teacher? You know, ये फिर से घूम फिर के आ रहा है and not a lecturer. तो आप बताइएगा, because most important, सबसे पहले बोलेगा चिल्ड्रन आर द फ्यूचर, दे आर द फ्यूचर फॉर द नेशन. वो हमारे फ्यूचर है, हमारे देश के फ्यूचर हैं, तो उन्हें हमें सुधारना है. अगर वी हैव टू स्टैंड अप फॉर देम, वी हैव टू बी पिलर एंड वी हैव टू गाइड देम फॉर देयर करियर एंड ग्रोथ. That is the reason why I choose to become a teacher, because they definitely bring tomorrow a beautiful sunrise. इसमें थोड़ा सा phrase डालेंगे, जैसे मैंने अभी बोला, they bring a beautiful sunrise, a beautiful tomorrow, they are the growth for the nation. ये आप बोलिएगा, because एक ही क्वेश्चन को उन्होंने हर तरीके से पूछा है. क्वेश्चन एक ही है कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, लेकिन आंसर्स को आपको ब्यूटिफाई करना है, उसको थोड़ा सा अपने वो देखना चाह रहे हैं कि आप में पेशेंस कितना है. तो आपको ये रिफ्लेक्ट करना है कि आई एम अ वेरी गुड टीचर, आई एम अ गुड लिसनर, आई एम cheerful person. Alright, the next question is that what are the qualities would you look for a principal? आप प्रिंसिपल में कौन सी अच्छी क्वालिटीज ढूंढते हैं? Now this question they are asking, they just want to know कि आपका इंटरेक्शन कैसा है. क्या आप आइसोलेशन में हैं, और आर यू इंटरैक्टिव पर्सन? क्या आप डू यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप ऐसे जवाब देंगे कि येस, इन प्रिंसिपल आई लाइक टू सी दैट आई वुड लाइक टू गिव माई बेस्ट, आई वुड लाइक टू टेक लॉट ऑफ be the backbone of the school, and I would like to stand with the principal. जो क्योंकि प्रिंसिपल एक ऐसे हैं जो लीड करते हैं, जो हमें बताते हैं कैसे आपकी क्लास कंडक्ट होगी. So I would like to know and I would like to also be helpful. So with helping hands, ऐसे बोलिएगा, I am ready with helping hands to be with the principal, and I want to have that one-to-one relation, so that for the smooth functioning of the school, not just one classroom. It is not matter of one classroom. खाली मैं एक क्लास की टीचर नहीं हूँ, मुझे पूरे स्कूल के साथ रहना है, इसलिए मैं प्रिंसिपल के साथ रिलेशन अच्छा रखना चाहती हूँ, and I am willing to help. This is a very important question. You have to say that I would like to be the backbone. कुछ इस पे ध्यान दीजिए, इसे मैं बार बार मैंने रिपीट करा. All right. The next question is, again it comes, what is a pedagogy? All right. Now pedagogy is a very simple way to answer. It simply means that you're trying to communicate in the language you're teaching. Your teaching has to be communicated in such a language which is comprehensive to the children. It's a science of teaching. सिंपल तरीके से आपने बता दिया. आप इसको ज़्यादा एलैबोरेट मत करिए, पूरा डेफिनेशन फॉर्म में बता दीजिए. दैट्स इट, इतना काफ़ी है. ऑलराइट, इसमें बिल्कुल नर्वस होने की बात नहीं है. इट्स सिंपल साइंस ऑफ टीचिंग, दैट्स ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, व्हाट इज योर टीचिंग फिलॉसफी? देखिए, घूम फिर के फिर से आ गया. वो पूरी तरीके से आपको एक अच्छे से आपका पर्सनैलिटी आपकी उभर रही है. ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, इट इज जस्ट डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी. सो यू डू से फोर्सफुली, माई टीचिंग फिलॉसफी इज to give service to mankind, to empower children, and also to give them reflection on their career growth, and to be the backbone of this entire school system. सिर्फ हम एक क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, हम पूरे स्कूल के लिए काम करना चाहते हैं. I want to work for this school. This is my teaching philosophy.
ऑलराइट, हम एक जगह केंद्रित नहीं है, हमारा नजरिया पूरे स्कूल को आगे बढ़ाना है। और व्हाई? बिकॉज फॉर द ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन, बिकॉज दे आर द टुमारो। This you have to specify, all right? That's your goal. Then next question would be, if a student in your class has a serious behavioral problem, how will you manage it? Simple, they're asking your discipline. Again, they're questioning on the discipline. So you have to manage it and say, I'm a unique teacher. I'm a unique teacher because I'm flexible, I'm a good listener, I'm a patient person. Cheerfulness, स्टोरी टाइम करते हुए, जैसे बिहेवियर प्रॉब्लम हो रही है, जरूरी है हमें पूरे क्लास में शांत करना, सबसे पहले बच्चे को शांत करना, उसकी बात हम सुनेंगे। ओके, अ गुड टीचर इज हु इज अ गुड लिसनर, ओके, बिकॉज दे वांट टू नो दैट यू आर इमोशनली स्टेबल। अगर आप इमोशनली स्टेबल हैं तो आप बच्चों की बात सुनेंगे। आप ये बात बोलिएगा, इमोशनली स्टेबल, and so that we can communicate well. Sound communication, communication word use करिएगा। Sound communication से हम behavioral problem solve करेंगे through counseling tools. These are teaching tools, okay? They are asking teaching tools, do mention counseling. All right. Now next question would be, again they would come up that what frustrates you the most in the classroom. This is a negative question. उसको आप आंसर कैसे देंगे? पॉजिटिव आना चाहिए इसका आउटकम। तो आप बोलिएगा, इन केस इफ माय प्लानर अप्रोच इज नॉट अंडरस्टूड बाय द चाइल्ड, तो आई फील दैट आई शुड वर्क मोर हार्ड ऑन दिस, तो इमीडिएटली माय बैकअप प्लान इज देयर। आप ये बात बोलेंगे, जैसे जो चीज फ्रस्ट्रेट हो रही है तो आई हैव अ बैकअप प्लान एंड आई सी टू इट कि मेरा बैकअप प्लान मैं उसी टाइम पे मैं एग्जीक्यूट करूं, और मेरे बच्चे जब वो घर जाएं तो हंसते हुए घर जाएं। हर एक बच्चा मेरे से जो पढ़े हंसते हुए घर जाए। पेरेंट्स डोंट हैव टू वर्क हार्ड ऑन देम, मैं यहीं पे उनका अभ्यास करा के जाऊं और उनको घर जाके पेरेंट्स को मेहनत नहीं करनी पड़े। ये मेरा उद्देश्य है। दिस इज माई अप्रोच, माई मोटिवेशन थ्रू मोटिवेशनल स्किल, motivational teaching skill. I would like to teach the children and they should never feel demotivated under me. ये जरूर बोलिएगा। Alright, so आपने अपनी बात रख दी, आपने बोल दिया कि अगर मैं frustrated होती हूँ तो मेरा backup plan है that should do well and that will do well. Alright, now why? Again they will ask you, how would you manage, different तरीके से पूछेंगे, how would you manage underperforming students? Underperforming students means what? अब आप यहाँ पे बोलेंगे through continuous CCE method, ये आपको बोलना है। there are ways of handling children. Continuous comprehensive evaluation हम जो कर रहे हैं, हम बच्चे को देखेंगे, बच्चे का परफॉर्मेंस अगर सही नहीं जा रहा है तो हमें उस बच्चे पे मेहनत करनी है। कुछ बच्चे शाय होते हैं, कुछ बच्चे चुप होते हैं, उन कोशिश करेंगे कि वो बच्चा हमसे कम्युनिकेट करे, उसको हम हेल्प करेंगे, उसको और डिटेल में हम बात करेंगे। एंड थ्रू कम्युनिकेशन we'll see to it that he is level up with the class, he does not feel left out. ये आप बात करेंगे। This you have to openly speak. It is a not one method, one to one, one way approach नहीं है, but it's a two-way approach. You have to mention that. All right. Now last but the least, that is also important. That is very important. Please hear me well. Which class would you like to teach and why? ये एंडिंग में ये जरूर पूछेंगे, चाहे वो बीच में पूछें, लेकिन ये क्वेश्चन आता ही आता है कि बिकॉज अल्टीमेटली दे वांट टू नो फ्रॉम यू विद सब्जेक्ट। सो ऑनेस्टली प्लीज आंसर। इसमें आप कोई गोल मोल मत करिएगा। आप बोलिएगा मुझे हिंदी पसंद है, बोलिए आप हिंदी। मुझे इंग्लिश पसंद है, आई लाइक इंग्लिश। एंड व्हाई यू हैव टू से लाइक आई लाइक इंग्लिश बिकॉज what I see, English is required globally. It's a global language. हम यहाँ से जब हम पढ़ते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन हमें बोला जाता है कि it's a medium which English will
make everything global and it is comprehensive in that manner in any job professional approach. So I chose English कि जो बच्चे मेरे अंडर आए मैं उनको इतना अच्छे इंग्लिश पढ़ा दूँ कि दे आर एबल टू कम्युनिकेट एंड डू वेरी गुड जॉब परफॉर्मेंस. तो आप इस तरह से रिफ्लेक्ट करेंगे. हमने इंग्लिश का बोल दिया, इसी तरह आप अपने सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी का, हिंदी में क्या बोलेंगे, ये हमारी जो लैंग्वेज है, इट इज़ अ लैंग्वेज जिससे सरलता से हमें सारी बातें समझ में आ जाती हैं. ये हमारी यू कैन ऐड, इट्स अ नेशनल लैंग्वेज, मीन्स बी प्राउड ऑफ योर सब्जेक्ट. डोंट फील अरे उसने इंग्लिश बोला, उसने कंप्यूटर बोला, उसने मैथ्स बोला, मैंने हिंदी बोला. नो, बी प्राउड अबाउट योर सब्जेक्ट. येस, आई एम अ हिंदी, आई लाइक टू टेक अप हिंदी. So you should feel proud what you teach. All right. So with this, I end here and wish you good luck. Hello. If you do like my set of questions, do support, do like, do share, do subscribe Academic Buddy, and do send your comment in the comment box. Do ask me questions. There are many other questions. ये तो मैंने important questions आपको पूरा क्लब करके आपको बता दिया. यू कैन आस्क मोर क्वेश्चंस, आई विल गिव यू द बेस्ट आंसर्स. थैंक यू.